صالح معاشرے کی مناسبت سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اور اس موضوع کے شروع کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف سورۃ العصر پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا زمانے کی قسم کھا کر کہ بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کی۔ یہ مختصر سورہ ہے لیکن بڑی جامع، ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صالح معاشرہ جسے ہم اور آپ ماحول کہتے ہیں، جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، بدوباش کرتے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، ماحول یہی معاشرہ ہے۔ ماحول یہ ماں کے معنی ہوتا ہے جو کچھ، اور حول ارد گرد، یعنی حول ارد گرد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تجارت ہے، معاملات ہے، یہ تمام چیزیں ماحول سے جڑی ہوئی چیزیں، یہ الگ نہیں ہے بلکہ اسی سے ماحول ہے، اور اسی کے ارد گرد جو کچھ ہو رہے ہیں وہ تمام کو ماحول کہا گیا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ شخص گھاٹے اور خسارے میں ہے، لیکن اس آیت کے اندر غور کریں، اس سورہ کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو انجام دینے والے کو اس سے بری الذمہ کیا، اور کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ 4 لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے وہ بات بھی بیان فرما دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ بس نہیں کیا بلکہ کہا عمل صالح۔ آج تو ایمان والے آپ کو دنیا میں بہت ملے گے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، اور اپنے اعمال اور اپنے افعال کی فکر ہو کہ نہ ہو، لیکن اعمال والے اور اپنے آپ کو جنتی کہنے میں ہم سب آگے ہیں۔ معاشرے کی حالت یہی بتلاتی ہے کہ عبادتوں کے اندر ہمارا کچھ معاملہ ہو کہ نہ ہو، نماز 5 وقتہ ہم ادا کر رہے ہوں کہ نہیں کر رہے ہوں، اتباع سنت کے موضوع پر ابھی بڑا پرمغز خطاب آپ سماعت کر رہے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ 4 چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ کامیاب ہے، اور آپ غور کریں، یہی 4 چیزیں اصل صالح معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نیک بنانا چاہتے ہیں اور بہتر معاشرہ کی تشکیل آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور پیش آمدہ مصائب و آلام پر صبر کرنا۔ یہی 4 چیزیں ہیں۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا یہ ہے کہ آج ہم معاشرے کو سدھارنا تو چاہتے ہیں لیکن سدھرنا نہیں چاہتے، دوسرے کو سدھارنا اس کی فکر آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج توانائی اور جتنی بھی انرجیاں اور جتنے بھی تمام جد و جہد اس کے پیچھے ہو رہے ہیں، تم سدھر جاؤ، تم سدھر جاؤ، لیکن خود دیکھیں کہ اس کی زندگی، ہم دوسروں کو سدھارنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جتنی بھی ساری ہمارے پروگرام اور تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں تو کر رہے ہیں لیکن خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ہمیں اور آپ کو بہت بڑے انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کی سدھار کے لیے بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو کسی انقلاب کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے نوجوانوں کا جو کردار رہا ہے معاشرے کی سدھارنے میں، سب سے پہلے وہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بارہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف روایت ہماری اور آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ آج بالخصوص میں مرد و خواتین جو کہ ٹاپک ہے، اور یہ بات کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر نوجوانوں کی وہ اہم کردار اور وہ چیزیں ہو سکتی ہے ایک نوجوان سے جس کے تعلق سے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، سورہ کہف ہم اور آپ پڑھتے ہوں گے، نوجوانوں کا ذکر ہے میرے بھائیوں۔ اور اس طرح سے نوجوانوں کے تعلق سے کتاب و سنت کی یہ تعلیم بتلاتی ہے کہ حقیقت معنوں میں اگر نوجوانوں کے اندر سدھار آ جائے، وہ ایک معاشرہ نہیں بلکہ 10 معاشرے کے اندر وہ حاوی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر معاشرے کی صالح معاشرے بنانے کی اس کے اندر جد و جہد تغودو، ہاں وہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ بڑے بزرگ ان کی رہنمائی اور ان کے ماتحت رہ کر کے آپ کو کام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے، اور حقیقت معنوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ کون ہے؟ خود کو سب سے پہلے صالح بنانا ہوگا۔ معاشرہ کہتے کس کو ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم اور آپ جو رہ رہے ہیں، کسی بھی
बड़ी से बड़ी इमारत को अगर हम बनाने की अगर तगोदो कर रहे हैं तो उसकी मजबूत पिलर हमारी और आपकी सब एक की ये ख्वाहिश होती है कि बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसमें इतने बड़े असासे खर्च कर रहे हैं, ये बिल्डिंग जो हो मजबूत हो, तवानाई हो, देर तक टिकने वाली हो। लेकिन मेरे भाइयों अगर उसके लिए सोच ये रहो और उसके लिए कोशिशें ना हो तो वो मुनहदिम हो जाएगी। कोशिश भी वैसे ही, सोच भी वैसे ही, और उसके पीछे मेहनतें भी वैसी ही होती है। ठीक उसी तरह से एक नौजवान जब आप इस मुआशरे की, सालेह मुआशरे की तश्कील में जब आप अपना रोल अदा करेंगे मेरे भाइयों, तो सबसे पहली चीज है कि जिस तरह से मजबूत ईंट के जरिए से एक बेहतरीन इमारत खड़ी हो सकती है जो पायदारी तक पहुंच सकती है, एक मुद्दत तक चल सकती है, मेरे भाइयों मुआशरे के अंदर अगर नौजवान अपने आप की जिम्मेदारी को अगर संभाल ले तो यकीन माने मेरे भाइयों कि अपने आप को सुधारने के साथ साथ वो एक मुआशरे को सुधारने का जामिन बन सकता है और वो जमानत ले सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है और कमी इस बात की है कि आज सुधारने की फिक्र तो हम करते हैं लेकिन खुद नहीं सुधरते हैं। आज बेशुमार चीजें हैं नौजवानों की मुनासिबत से मेरे भाइयों कि आज कौन सी सारी चीजें आज मुआशरे के अंदर वो कौन सी खराबियां हैं जो हम और आप देखें टटोले कि आज वो चीजें आज मुआशरे के अंदर ना पाई जा रही हो। बिलखुसूस नौजवान बच्चे और बच्चियों के मुनासिबत से मेरे भाइयों देखिए कि सबसे पहली चीज हम और आप जब जो सबसे पहली कोशिश करनी है मेरे भाइयों मुआशरे के अंदर कि सालेह मुआशरा हम कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमें और आपको करना क्या है। आइए मुख्तसर और सरसरी तौर पर बड़ी तेजी के साथ मैं वो चीजों को आपके सामने लाता हूं कि मेरे भाइयों सबसे पहले मुआशरे की तश्कील को बेहतरीन मुआशरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें और आपको अकीदे की इस्लाह पर काम करना है। अकीदे की इस्लाह। आज मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी बुराइयां, दिगर तमाम बुराइयां हैं, शराब नोशी है, जुआबाजी है, हसद है, कीना है, कपट है, सूद है, ये तमाम चीजें को एक तरफ रखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम से सवाल करना चाहता हूं कि मुआशरे की सबसे बड़ी गंदगी जो है ये बदअकीदगियां हैं और इसी की वजह से मुआशरे के अंदर वो तमाम बुराइयां पाई जाती है। जब तक आप एक तरफ कलमे का इकरार करते हो मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कलमे के पहले जुज में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा कर रहे हो तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तू ही एक अल्लाह है, और अपने सरों को न जाने दुनिया के कितने जगहों पर जाकर के हम अपने मावा मलजा और न जाने कितनी तमाम चीजें ये शिरकिया आमाल और बिदात और खुराफात आज मुआशरे का मेरे भाइयों पिनपता हुआ एक नासूर है जो आज हमारे और आपके मुआशरे में पाई जाने वाली है। मैं सबसे पहले जो आपको कहना चाहूंगा कि सालेह मुआशरे की अगर आप ख्वाब देख रहे हो मेरे भाइयों तो सबसे पहले आपको इस बदअकीदगियों को अपने मुआशरे से खत्म करना पड़ेगा। और मुआशरे के अंदर सबसे पहले ये बदअकीदगियां जब जो पहले ये के अंदर हम जिस बात का मेरे भाइयों इकरार कर रहे हैं, आज हम और आप जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से वहदानियत का इकरार करने के बाद दूसरे कलमे में व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह, मैं इस बात की भी शहादत देता हूं, गवाही देता हूं कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला अहले इल्म ने बयान फरमाया है कि पहले जुमले के अंदर अल्लाह की वहदानियत और दूसरे जुमले के अंदर हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा कोई भी अमल इत्तिबाई सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। और इस गवाही देने के बावजूद रब के साथ इतनी बड़ी गद्दारी मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को बख्शता नहीं है। और ये तमाम तर बुराइयों को मैंने कहा कि आप एक तरफ रखे, लेकिन मुआशरे की अगर आपको इस्लाह की अगर फिक्र है और इस्लाह की अगर आप ख्वाब देख रहे हैं मेरे भाइयों, सबसे पहले मुआशरे को साले बनाना पड़ेगा। आज क्या नहीं है मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर कौन सी खराबियां नहीं है। आज हमारे और आपके मुआशरे के अंदर वो बदअकीदगियां, अगर सिर्फ तावीज की बात कर ली जाए मेरे भाइयों तो आज इतने किस्म के तावीज पाए जा रहे हैं कि मैं समझता हूं और बबागे दोहल आपको ये बात बता रहा हूं मेरे भाइयों कि अगर तावीज की शक्ल पर सिर्फ अगर बात कर ली जाए तो घंटों दरकार है मेरे भाइयों। ये फला धागा है, ये फला कागज है, कुरान करीम की आयतों को उल्टा लिख करके, गिनतियों को उल्टा लिख करके, ये फला किस्म के ये काले धागे हैं, ये फला धागे हैं, ये तांबे में रखने के लिए है, ये पॉकेट में लेकर के चलने के लिए है। मेरे भाइयों आज
क्या हो गया है? तुमको एक अल्लाह पर एतकाद रखने के बावजूद तुम्हारी ईमान एक धागे पर आकर के अटक गई है। यही है मेरे भाइयों अकीदे तौहीद। और एक अल्लाह की वहदानियत की तुम एक तरफ गवाही पेश कर रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरे भाइयों सरासर गद्दारी है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी बख्शेगा नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह किसी शायर ने कहा था, ये नग़्मे फसले गुलोला का नहीं पाबंद, ये नग़्मे फसले गुलोला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी फिक्र होनी चाहिए। आज मुआशरे के अंदर हमारे और आपके गलियों सड़कों में झंडे डंडे, ये कामिल, ये फकीर, ये फला, और इसी तरह से ये तमाम चीजें, ये झंडे हैं, ये कामिल है, ये आमिल है, ये तमाम चीजें आज पाई जा रही है। मेरे भाइयों, सबसे पहले आज मुआशरे की अगर इस्लाह की आप फिक्र करते हो तो सबसे पहले इस बदअकीदगी पर यह काम करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर हमारे नौजवान बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, रिफाही काम कर रहे हैं, तालीम पर काम कर रहे हैं, दुनिया भी करती है। लेकिन मेरे भाई बताओ कि आज आप आखिरी वक्त कब किसके गले में आपने तावीज पकड़ कर कहा था कि यह शिर्क है, ये सही नहीं है, ये बिदअत है? मेरे भाइयों, ये कब आप आखिरी मर्तबा कहे थे? जरा अपने आप से पूछने की जरूरत है, अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि कब आखिरी वक्त में आपने किसी के गले से आपने तावीज उतरवाने का मुआशरे के अंदर काम किया था? मेरे भाइयों, आप नहीं बहुत कुछ आप बता दो, आप मौलाना के पास लाओ, आप अहले इल्म के पास ले जाओ, नहीं सुनते हैं फोन पर ही उनको बता दो। आपकी जो जिम्मेदारी है, हिदायत आपके हाथ में नहीं है मेरे भाइयों। हमारा और आपका काम है जुस्तजू और मुआशरे को साले बनाने के लिए ये पहली फिक्र होनी चाहिए जो अकीदे तौहीद की मुनासिबत से है। आज आप भी, आप नौजवान भी अगर इस काम को अगर छोड़ दोगे तो मेरे भाइयों, दुनिया की वो कौन है जो इस चीज पर करेंगे? बहुत सारी चीजों पर काम हो रही है, और लोग शराब नोशी पर बोल रहे हैं, हसद पर बोल रहे हैं, कीना कपट पर बोल रहे हैं, और इसी तरह से तमाम चीजों पर बोल रहे हैं। लेकिन आज अकीदे की इस्लाह की फिक्र मेरे भाइयों बहुत कम है, जो नापेद हो गई है। आज मैं मुस्लिम मुआशरे के नौजवानों से मैं बिलखुसूस कहना चाहूंगा कि यह आपकी अहम जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों कि इन तमाम चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है अगर आप इस्लाह मुआशरे की चाहते हो। इसी तरह से मेरे भाइयों, दूसरी जो चीज है, अकीदे तौहीद के इस्लाह के बाद हमें और आपको जो फिक्र करनी है अकीदे तौहीद के ये के बाद कि अपनी इबादतों की फिक्र, अपनी इबादतों में बिलखुसूस 5 वक्त की नमाजों की फिक्र हमें और आपको होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, और चाहे मर्द हो कि औरत, और दोनों चीजें मैं आखिर में आकर के उनके ताल्लुक से भी चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इन दोनों के अंदर मेरे भाइयों ये दोनों शामिल है। इबादत, जहां पर अकीदे की बात आए तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि औरतों के अंदर बदअकीदगियां बड़ी तेजी के साथ हर दौर में फैली है और आज भी फैल रही है। उनको न जाने मेरे भाइयों, मेरे खवातीन को क्या हो गया कि आज उनको दुनिया के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं, इनके अंदर कहां से ये तमाम चीजें उनके नजरों के अंदर और उनके ज़हनो दिमाग में समाती है, और इसका सबसे बुनियादी वजह है इल्म दीन से दूरी, इल्म दीन से दूरी। और आज हमने औरतों के लिए, खवातीन के लिए बिलखुसूस मेरे भाइयों, आज हमने मस्जिदों के दरवाजों को बंद किया है। आज मैं कुर्बान जाइए, और मैं ये पेश करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये हुक्म पर जो उन्होंने जारी किया कि खवातीन के लिए भी मस्जिदों को खोली जानी चाहिए। मेरे भाइयों, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज ही देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन आज भी अगर आप अपने बच्चियों को, अपनी खवातीन को अगर मस्जिद के दरवाजे मेरे भाइयों अगर वहां नहीं ले जाते हैं, और इस तरह के प्रोग्रामों में और इस तरह के महफिलों में अगर नहीं लाते हैं, उनके अंदर से बदअकीदगियां मेरे भाइयों कैसे खत्म होगी और कैसे उनको इल्म आएगा और शरीयत की सही पहचान आएगी? तो इसलिए जरूरत है इस बात की कि खवातीन के लिए आज बहुत सारी चीजें आज हमारे नजरों के सामने रूनमा हो रहे हैं कि क्या फितना नहीं है। फितने इर्तिदाद से बढ़कर के और क्या होगी कि एक मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम बच्चियां एक गैरों के साथ भाग करके और मंदिरों में जाकर के शादी करें। इससे बड़ा तुफ हमारे और आपके लिए क्या है? और उसके लिए आज हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वो मस्जिद अपने किरदार में अधूरी है जिस मस्जिदों के अंदर और जहां के जिम्मेदारों ने वो एहतमाम नहीं किया है खवातीन को तक वो पहुंचाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत माया हजरत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सवाल देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम दिन, रोजमर्रा पूरे दिन ये मर्दों के लिए है, और मर्द जो है हम पर फौकियत ले जा रहे हैं।
اللہ अकबर, एक आयत मुकम्मल तौर पर सूरह अहज़ाब की नाजिल हो जाती है। और इस तरह से आप देखें खवातीन के ताल्लुक से उम्मे वरक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो मुकम्मल कुरान की हाफिजा थी, मेरे भाइयों कुरान पूरा ज़ब्त की हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घरों के अंदर खवातीन की जमात कराना चाहता हूँ और अपने इमामत में अपनी इख्तिराम तमाम की मैं इमामत करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। उम्मे वरक़ा ये और दीगर, चूंकि आसान तो नहीं दे सकती है, लेकिन मुहद्दिसीन ने बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद उम्मे वरक़ा जो है वो नमाज पढ़ाती रही और आजान कोई मर्द दिया करते थे, चूंकि आजान औरत नहीं दे सकती है। तो मेरे भाइयों ये तमाम चीजें थी, लेकिन आज मुआशरे के अंदर पूरी दुनिया के हर महफिलों में आज हमें और आपको फितना नहीं दिखता है, लेकिन अगर खवातीन को अगर मस्जिद का ये हफ्तावारी अगर एक दिन तकरीर का मौका सुनने का मौका मिलता है, वहां हमें और आपको फितना नजर आता है। बाजार में तमाम चीजें औरतें करें, तमाम मार्केटिंग औरतें करें, कपड़े वही खरीदे, सब्जियां वही खरीदे, वहां कोई फितना नहीं है। गैर महरम के सामने अपने हाथों को बढ़ा करके वो तमाम चीजें करे। ये आज हम मर्द हैं मेरे भाइयों, आज हमें और आपको डूब मरना चाहिए। औरतों को इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान नहीं किया था। सूरह अहज़ाब की आयत उठाइए, वक़रना फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, औरतों का मकाम दिया। मेरे भाइयों ये वो शरीयत है और ये वो रहमत शरीयत है हमारे और आपके लिए कि खवातीन के लिए हमेशा से रहमत रही है, रहमत है और तादमे कयामत और तादमे हयात ये रहमत बन करके रहेगी। लेकिन हम और आप है कि उसे अपनाना नहीं चाहते। घरों में टिक करके रहने की बात कही गई, लेकिन आज हम आजादी के नाम पर, आजादी के नारों पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं। साले मुआशरा मेरे भाइयों कहां से हम और आप ख्वाब देख रहे हैं। तो सबसे पहले अकीदे की इस्लाह के बाद हमें और आपको फिक्र करनी है अपनी इबादतों की फिक्र की, अपनी इबादतों की फिक्र होनी चाहिए। नमाज आपके दीन की हिफाजत का जिम्मेदार है और इसके अंदर वो चीज है कि मेरे भाइयों सल्फ कहा करते थे कि अल्लाह से तुमको कितनी मोहब्बत है, अल्लाह से तुमको कितनी मोहब्बत है, ये अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम अपनी नमाज को देख लो कि तुम अपनी नमाज में कितने पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा सल्फ की जिंदगी से कि नमाज के अंदर आज हमारी और आपकी समाज के अंदर सब कुछ है, तमाम चीजें हैं, अल्लाह के तमाम दिए हुए नियामतों का हम वक्त ये कर रहे हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन की पुकार जो 5 वक्त हमारी कानों से आवाज हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की अस्सलातु खैरुम मिन नौम की टकरा रही है, हमारी कानों पर जू तक भी नहीं रेंगती। साले मुआशरे की तश्कील कहां से होगा मेरे भाइयों? साले मुआशरे ऐसे नहीं बनेंगे और सिर्फ ये जबानी दावे और उसकी फिक्र करने से नहीं, बल्कि उसके लिए अमली किरदार हमें और आपको पेश करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे भाइयों समाज के अंदर अखलाकी बिगाड़, और इसी तरह से हम और आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, हमारी और आपके दिन का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत नमाज फज्र के जरिए से करवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज फज्र के जरिए से हमारे दिन का आगाज करवा रहा है। हमारे दिन का इख्तिताम अल्लाह रब्बुल आलमीन इशा की नमाज पढ़वा करके करवा रहा है। फिर 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाता है ताकि मुआशरती जिंदगी में जो हम और आप हैं कहीं ऐसी चीज ना आ जाए जो दुनियावी हमारे दिलों पर गालिब आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 मरतबा फिर हमें और आपको बुलाता है। एक आयत जिसके अंदर बड़ी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, मेरे भाइयों कहा इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और इसके बरअक्स मैं एक और आयत आपके सामने रखूं, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात। आज हम और आप ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार हैं। आज हमारी ख्वाहिशात तमाम अहकाम पर आज गालिब है। मेरे भाइयों अहले इल्म ने बयान फरमाया कि अगर तुमको नमाज में दिल नहीं लगती हो और दिल ख्वाहिशात से अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम नमाज के पाबंद हो जाओ। ख्वाहिशात अगर तुम्हारे दीन पर अगर गालिब है और तुम्हारे ख्वाहिशात पर अगर ये चीज ख्वाहिशात जो है ये गालिब है तो अहले इल्म ने बयान फरमाया कि तुम अपनी नमाज का पाबंद बन जाओ। और इसी तरह से मेरे भाइयों समाज के अंदर अखलाकी बिगाड़, बेराह रवी, नौजवानों के अंदर जो बेराह रवी हमें और आपको देखने को मिल रही है वो नागुफ्ताबे है, अखलाकी बिगाड़। आज मेरे भाइयों और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और सबसे बुनियादी जो पहलू है आज ये इंटरनेट का जमाना और बड़े बड़े मोबाइल जो आज हम अपने बच्चों को बड़ी आसानी के साथ, आज मर्द और खवातीन दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, बड़े लाड प्यार के साथ मेरे भाइयों हम और आप इस मामले में या तो इफरात के शिकार हैं या तफरीद के शिकार हैं। दोनों तवाजुन को मेरे भाइयों इस मामले में हमें और आपको बरकरार रखना चाहिए। या तो मोहब्बत में बहुत ज्यादा अपने औलाद को हम और आप लाड प्यार देने में हम और आप बिगाड़ रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा सख्तियां हैं।
دونوں کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو بیچ کا راستہ اولاد کے ساتھ اور احتسابی نگاہ، یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج اخلاقی بگاڑ جو ہے آج وہ کس طرح سے ہمارے اور آپ کے معاشروں پر یہ کر رہی ہے میرے بھائیوں۔ تو جو دو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی نماز کی مناسبت سے، اس کے بعد ہے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر ذاتی اخلاق، اخلاق درست ہو ہماری اور آپ کی ذاتی اخلاق جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، جہاں پر بھی ہو ہم معاشرے کے لیے ہم رحمت ہو، زحمت نہ ہو، رحمت بن کر کے رہیں۔ ہمارے اور آپ کے کردار، افعال اور ہمارے اور آپ کے چال چلن یہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے سنتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سراپا تمام لوگوں کے لیے وہ رحمت ہی رحمت تھے، ان کی زبان، ان کی گفتار، ان کی کردار، تمام چیزیں۔ لیکن جب عرب سے وہ نکل رہے تھے مکہ سے اور حبشہ کے مقام پر پہنچ کر کے جب اس کو ایک بندے سے اور ایک شخص سے جب ملاقات ہوئی، کہا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے اندر کچھ لوگوں نے میرا رہنا دشوار کر دیا ہے، بڑی اذیتیں دے رہا ہے، بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سرزمین سے نکل کر کے کسی دور پر جا کر کے میں رب کی عبادت صحیح انداز سے کر سکوں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ابن دغنہ جو وہاں مکے کا سردار تھا، کہا یا ابا بکر مثلک یخرج ولا یخرج، کہ تم نہ نکل سکتے ہو اور نہ تمہیں کوئی نکال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارا رہنا تو ہمارے معاشرے کے لیے رحمت ہے، اور تم کہاں جا سکتے ہو؟ تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج اپنے آپ سے پوچھیں میرے بھائیوں، آج ہم سے اور آپ سے اور تمام جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، 10 قدم آگے، 10 قدم پیچھے، 10 قدم دائیں، 10 قدم بائیں، آپ جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے پڑوسی بھی آج ہم سے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہم سے آج محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے تانے سے، ہمارے چال چلن سے، یا تو وہ آپ سے نالا ہے یا آپ ان سے نالا ہے، یہ معاملات ہے میرے بھائیوں۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو اس طرف لے چلوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ معاملات اور شریعت کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ معاملات میں ہمیں اور آپ کو شریعت کا آئینہ دار ہونا چاہیے، چونکہ معاملات جو ہے ایک انسان کا وہ حقیقت معنوں میں ہماری اور آپ کے دین کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر آپ کوئی چیز پر، کوئی عہدے پر اگر فائز ہیں، مان لیجئے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے ہی کام پر آپ کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی گھڑی آپ بنانے کے یہ ہو اور میکر ہو، گھڑی بنا رہے ہو اور کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ کل صبح میں آپ کو گھڑی دے دوں گا بنا کر کے، موبائل کا شاپ ہے، موبائل کی دکان ہے آپ کی، آپ نے کہا کہ موبائل بنا کر کے کل صبح دے دوں گا، اگر آپ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنے دین کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، آپ اپنے گفتار میں صحیح نہیں ہے، آپ اپنے کردار میں صحیح نہیں ہے، اور اسی سے تمام معاملات وجود میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی زبان جو ہے یہ منوعن اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو احکامات دیا ہے اس کا پابند ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں، اہم بات دو چیزیں عورتوں کی مناسبت سے بتا کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ یہ اتنی دیر جو تمام چیزیں سن رہے تھے میرے بھائیوں، وہ دونوں مرد و زن دونوں اس میں شامل ہے، لیکن دو اہم چیزیں میں آپ کے سامنے بالخصوص خواتین کے حوالے سے میں رکھنا چاہوں گا۔ آج معاشرے کے اندر میرے بھائیوں جو تمام چیزیں ہیں اور جس طرح کے آج گھروں عائلاتی زندگی کو آج ہم بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ اس کو یا تو طلاق اور یہ کہ خلا کی نوبت تو نہیں، لیکن ایک ہی چھت کے اندر وہ گھٹ گھٹ کر کے اس قدر زندگی گزار رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر تھا۔ میرے بھائیوں، ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر نہ اس سے وہ بات، نہ وہ گفتگو، نہ زندگی کے وہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اتنی دیر جو نوجوانوں کی، مردوں کی سدھرنے کی بات ہو رہی تھی، میں خواتین کو کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ اگر نوجوان بگڑ رہے ہیں تو یہ ابھی ہم اور آپ سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر سدھر جائے تو ان کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خواتین کے لیے یہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کا گود ایک بچے کے لیے میرے بھائیوں پہلا مدرسہ ہے، پہلا تربیت گاہ ہے۔ اگر خواتین اپنے آپ کو سدھار لے تو ان نوجوانوں کو سدھارنے، نوجوانوں کی دہلیز پر جب وہ قدم رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع بن کر کے قدم رکھے گا، جب اس کی جوانی گزرے گی، جب اس کی ادھیر عمر گزرے گی، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج معاشرے کے اندر خواتین سدھر جائیں اور خواتین اپنے آپ کو اور اپنے جو اہم ذمہ داری ہے اس تعلق سے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یقین مانے معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں اور یہ تمام طرح کی دہائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین اگر اپنے اولاد کے تئیں اگر وہ مکمل طور پر یہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی تمام احکامات کی پابندی، ایک ملک بن مروان کے
जमाने में एक अरबी माकूला है, वो कहा करते थे औलाद की मुनासिबत से, जैसा कि मैंने कहा ना कि बहुत इफरात या तफरीत के शिकार है मुआशरे के अंदर, और ये दोनों गलत है। उन्होंने कहा कि दाइम इब्नक सबअन वअद्दिबहु सबअन सुम्मा तुरुकिल हबल अला गालिबिही, कि सबसे पहले हमें और आपको बचपने के 7 साल जो है बड़े लाड प्यार दीजिए। आप बच्चों को बड़ा लाड प्यार कीजिए, ये वक्त जो होता है लाड प्यार का होता है। फिर 7 से लेकर के 14 तक का जो मरहला है, इसके अंदर उससे आप अदब सिखाइए। सुम्मा वअद्दिबहु सबअन, सुम्मा वअद्दिब, और बहुत सारे अहकामात और बहुत सारी रिवायतों के ज़िम्न में इस अहले इल्म ने इस ये को जुमले को सही माना है मेरे भाइयों, जो तायीद करती है अहादीस नबविया की। मेरे भाइयों, कहा कि फिर 14 से 21 का जो मरहला है, अपने साथ बच्चों को रखिए, उसके अब जिंदगी के जो तमाम चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसका उसमें एहसास दिलाई। सुम्मत रुकिल हवला अला गालिबिही। अगर इस पैमाने पर अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं मेरे खवातीन, तो आप समझे कि यकीनन फिर आप आगे चल करके उसके किसी उम्र की और किसी दहलीज पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम और आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पर्दे की मुनासिबत से एक बात कर लो कि सबसे पहले मैंने कहा कि औरत अगर खुद अपने आप की जिम्मेदारी का एहसास अगर हो जाए तो ये तमाम चीज नहीं होगी। और इसी तरह से पर्दे की मुनासिबत से हजरत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मुनासिबत से आता है, वो जब निकलती थी तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो उन्हें टोक दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर के गई, और शिकायत भी कैसी कि अल्लाह के नबी जब भी निकलते हैं उमर मुझे टोक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार किया और खामोश रहे, और उसके बाद अहकाम नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़न लाकिन अन तखरुजना लिहवाइजुकुन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले इरशाद फरमाए और कहा कि अपनी जरूरियात के मातहत खवातीन जो है निकल सकती है। लेकिन आज मेरे भाइयों, आज घरों का माहौल बिला जरूरत, आज कहां पर कौन सी महफिल में आज हमारी खवातीन नहीं नजर आ रही है मेरे भाई, बिला जरूरत बिला वहियात के, और कोई काम भी ना हो, इख्तिलात मर्द जन का जहां पर महफिल है वहां पर आज हमारी खवातीन को देख लीजिए, साना बसाना, और इस तरह आजादी के नाम पर आप आजाद नहीं हो, बल्कि आप पूरे तौर पर अल्लाह के अहकामात से आप आजादी लेना चाह रही हो मेरे पर्दानशी खवातीन इस्लाम। इसी तरह से आप मुआशरे की इस्लाह की अगर फिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमें और आपको आज मुआशरे के अंदर एक मुसलमान, एक नौजवान मेरे भाइयों, अगर दाढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की मुनासिबत से अगर बात कर रहे सुन रहे थे ना, अगर ये रख ले तो बहुत सारी चीजों के ऐसी इस्लाह हो जाए। ये दाढ़ी है ना, ये सुन्नत है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन आज हमारे मुआशरे के नौजवानों के ये पर देखिए, चेहरों पर देखिए, बहुत सारे नौजवानों को बहुत दिनों के बाद जब लंबी दाढ़ी देखा, कहा कि भाई ये तो बड़ी कमाल की बात, बड़ी खुशी की बात है। कहा कि हाँ, जब तक ये नहीं रखा था, बबागे दोहल और बिला तामुल, बिला गौर व फिक्र के, जुमा का दिन है, मस्जिद के एक तरफ थिएटर है और मस्जिद के दूसरी तरफ आजान जुमा की हो रही है, लेकिन बिला तामुल वहां पर फिल्म देखने के लिए मैं तैयार था, और उस वक्त मेरी दाढ़ियां नहीं हुआ करती थी। बिला तामुल मैं सिगरेट नोशी में का आदि था, लेकिन जब से अल्लाह का फजल है, जब से ये दाढ़ी छोड़ा हूं ना, इन तमाम चीजों का खात्मा वैसे ही हो गया है। अब कहीं पर भी जाता हूं और कोई गलत काम करने के लिए सोचता हूं तो 10 मरतबा सोचता हूं कि ये दाढ़ी लेकर के कहां मैं जाऊं। मेरी पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, आप आजादी के नाम पर इस बुर्के को और इस पर्दे को अपने लिए वाहियात ना समझे। और इस तरह से ये बहुत सारी औरतों और खवातीन के ताल्लुक से सुनते हैं ना, कहती हैं कि पर्दा तो दिल का नाम है। अल्लाह अकबर, अज़वाज मुतहरात से और वो जो पाकबाज खातून थी उनसे भी ज्यादा आप पाकबाज बनना चाहती है। अल्लाह अकबर, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो रहा है, वो तफसील का वक्त नहीं कि मैं उधर आपके जहन ले जाऊं, तो आज बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दायरा कार आपके लिए मुतय्यन किया है, उस दायरे के मुत्तबे आप बन जाएं, यकीनन मुआशरे की बहुत सारी खराबियां वैसे ही आपसे दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब वक्त नहीं इजाजत दे रही है कि मैं मजीद अब इस मौजू की मुनासिबत से और चीजों पर इशारा करूं। बस 5 मिनट वक्त है नमाज के शुरू होने में, मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं तो हम तमाम को हकीकी मानों में साले मुआशरे की तश्कील में मर्दों खवातीन का जो किरदार किताब सुन्नत की रोशनी में है इलाहुल आलमीन, तो हम तमाम की जिंदगियों में उन तमाम तालीमात को इलाहुल आलमीन लाहे अमल बनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।